ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان۔ محافظ۔ تمہاری ضمانت میری پشت پر 3 لکیروں کی صورت میں موجود ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے اسے بتایا کہ ڈیئر ڈان نے جیل میں ہمارا استقبال کیسے کیا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے دھیمی آواز میں غرا کر کہا، میں اسے دیکھ لوں گا۔ فی الوقت وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ایسا نہ ہو بوقت رخصتی بھی کچھ ایسا ہی سلوک ہو۔ اس نے اپنی جیب سے ایک موبائل فون نکال کر نمبر ملائے۔ میں جان گرے بات کر رہا ہوں۔ میں نے تمہارے پاس جو آدمی بھیجے تھے، تم نے ان پر تشدد کیوں کیا؟ دوسری طرف یقیناً ڈیئر ڈان تھا۔ ڈیئر ڈان نے کیا جواب دیا میں نہیں سن سکا، لیکن اسے سن کر جان گرے کا منہ بالکل ہی لال ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، تمہیں کونسل کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ تم نے اختیارات کو چیلنج کیا ہے۔ اس نے جھٹکے سے موبائل بند کر دیا۔ ڈیئر ڈان اچھا شخص نہیں ہے تمہارے مقابلے میں نے اسے اکسایا۔ وہ خود کو بہت کچھ سمجھنے لگا ہے۔ جان گرے کے انداز میں حقارت تھی۔ میرے سامنے اس کی حیثیت چیونٹی سے زیادہ نہیں ہے۔ اٹھو، میں تمہیں کچھ اور دکھاؤں۔ وہ مجھے لے کر ایک بار پھر لفٹ کی طرف آیا۔ بیچارہ ویٹر جو کافی لا رہا تھا ٹرے لے کر الٹے قدموں لوٹ گیا۔ لفٹ مزید نیچے چلی گئی۔ اس جگہ کتنے لیول ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بے شمار، اس نے کہا، اور ہم لفٹ سے باہر آ کے آج ذرا اسپیشل شو ہے۔ شو کے نام پر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ نائٹ کلبوں میں اسپیشل شو کے نام پر عام طور پر ابلیس کو شرما دینے والی حرکتیں ہوتی ہیں۔ ان میں اسٹیپ ٹیز سے لے کر لائیو سیکس شو تک سب شامل ہوتے ہیں۔ لیکن میرا اندازہ غلط تھا۔ ہم جس سال میں داخل ہوئے اس کے وسعت دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ یہ ہال کمرہ کم از کم بھی 50 گز لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا۔ اس کے وسط میں ذرا گہرائی میں 20 گز دائرے کا ایک خالی حصہ تھا، جیسا کہ عام طور سے اکھاڑوں میں ہوتا ہے۔ اس کے چاروں طرف قطار میں نشستیں لگی تھی۔ ہم جس جگہ سے داخل ہوئے یہ حصہ VIP باکس پر مشتمل تھا۔ شیشے کے ایسے باکس تھے جن میں 4-5 افراد آرام سے بیٹھ سکتے تھے اور ان میں ہر سہولت میسر تھی۔ باقی نشستیں بھی کھلی ہوئی اور آرام دہ تھیں۔ نشستوں والا حصہ وسط کے دائرے سے تقریباً 5 فٹ بلند تھا۔ یہ رنگ ہے؟ جان گرے نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہاں مقابلے ہوتے ہیں، یعنی کشتی وغیرہ؟ وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ تم کہہ سکتے ہو۔ ویسے اس حصے کو سیزر ہال کہا جاتا ہے۔ میرے جسم میں سنسنی سے دوڑ گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ رومی جرنیل سیزر اس قسم کے مقابلے کرانے کا شوقین تھا، جس میں انسان انسانوں اور جانوروں سے لڑا کرتے تھے۔ یہ مقابلے خون ریز ہوا کرتے تھے اور بہت کم لوگ ان اکھاڑوں سے واپس زندہ آیا کرتے تھے۔ جان گرے مجھے لے کر اگلی قطار میں واقع بوتھ میں آیا تھا۔ شیشے کا دروازہ کھول کر ہم اندر آئے، جہاں ایئر کنڈیشنر کی خنکی کے ساتھ ایئر فریشنر کی مہک رچی ہوئی تھی۔ اندر صوفہ نما نشستیں تھیں۔ ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ 2 سرتاپا بنی سوری قیامتیں اندر داخل ہوئی۔ یہ یورشین گرلز تھیں، جن کے حسن کے جلووں میں یورپ کی کرگی اور مشرق کی کشش شامل تھی۔ خائے جان، ایک لڑکی نے لہک کر کہا اور اس سے لپٹ گئی۔ ہائے ہنی، جان نے اس کی گرم جوشی کا جواب اتنی زیادہ گرم جوشی سے دیا کہ مجھے نظر پھیرنا ہی پڑی، اور پھر میں گڑبڑا گیا۔ قیامت نمبر 2 قاتلانہ انداز میں مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ہائے سمارٹ، اس نے کہا۔ خائے، میں نے جلدی سے ہاتھ پیش کر دیا، اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ وہی سلوک کرتی جو پہلی قیامت جان کے ساتھ کر رہی تھی۔ میں جینا ہوں۔ میں یوسف، میں مسکرایا۔ یورپ کے کسی ملک سے ہو یا امریکی ہو؟ اس نے سرک کر میرے پاس آتے ہوئے کہا۔ میں بین الاقوامی باشندہ ہوں، میں نے کہا، اور یہ سچ بھی تھا۔ میری جہاز پر کام کرنے والے لوگ بین الاقوامی باشندے ہی ہوتے ہیں۔ میرا مطلب ہے تمہارا پس منظر میں نہیں جانتا۔ میں نے اس بار بھی سچ کہا، لیکن لڑکی مذاق سمجھی تھی۔ اس نے ہنس کر مجھ پر گرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے سیدھا کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ نشے میں تھی۔ اس کے منہ سے الکوہل کی بو آ رہی تھی۔ سب سے آخر میں جان گرے تھا، اس کے بعد قیامت نمبر 1، پھر میں، اور آخر میں قیامت نمبر 2 تھی۔ گویا میں ان دونوں کے درمیان سینڈوچ بنا ہوا تھا۔ جینا موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔
वो ज्यादा से ज्यादा चिपकने की कोशिश कर रही थी। मजबूरन मुझे जिस्म को जरा सा सख्त करना पड़ा। वो चीख उठी, उफ तुम्हारी कोनी। मेरे उसने बताया कि कोनी उसे कहाँ चुभी थी। सॉरी कर, मैंने मुस्कुरा कर कहा। इसी लम्हे बाहर शोर हुआ। मैं चौंका। रिंग में एक तरफ से दीवार किसी स्लाइडिंग डोर की तरह हटती थी और एक शख्स अंदर आया। उसने सिर्फ लंबी सी निकर पहन रखी थी। जब रिंग में दूसरा शख्स भी नजर आया तो मैं समझ गया कि वो किसी ऐसे दरवाजे से आया होगा जो मुझे नजर नहीं आ रहा था। इसका हुलिया भी कुछ इस किस्म का था। फिर एक तीसरा शख्स नजर आने लगा। उसने रेफरी का सा लिबास पहन रखा था। बाद में वह अनाउंसर साबित हुआ। वो मुकाबले की शराइत बयान कर रहा था। दर हकीकत मुकाबले की एक ही शर्त थी, यानी जिंदा बचने वाला ही फातेह शुमार होगा। रिंग के अंदर अपने मुखालिफ को मौत के घाट उतारने के लिए वो हर हरबा इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि वो दोनों किसी एक हथियार पर मुत्तफिक नहीं हुए थे। इसलिए मुकाबला खाली हाथों होना था। यह क्या बकवास है? मैंने जान ग्रे की तरफ देखा। क्या खूनी मुकाबला होगा? तुमने दुरुस्त सुना है, उसने इत्मीनान से कहा। अगर ये बकवास होती तो ये लोग हजारों डॉलर्स के टिकट लेकर यहाँ ना आते, या इनको सचमुच खूनी मुकाबले देखने को मिलते हैं। लेकिन ये खिलाफ कानून है। किस कानून के? उसने सवाल किया तो मैं लाजवाब हो गया। बाकी इस जगह का कोई कानून नहीं था। इसके बावजूद वो इंसानों को आपस में लड़ाना, ये तो वहशत है। कदीम दौर की सफाकी। क्या बॉक्सिंग और रेसलिंग के मुकाबले नहीं होते? इनमें भी लोग मर जाते हैं, जान ग्रे ने कहा। वो इत्तिफाकी हादसात होते हैं। यहाँ तो जानबूझकर एक इंसान को दूसरे इंसान के हाथों हलाक करवाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि कुछ सेनी मरीज इस मंजर से लुत्फानंदोज होने के लिए हजारों लाखों खर्च करने को तैयार हैं। मेरे लहजे में तलखी थी। जान ग्रे की आंखों से सुर्खी छलकने लगी। तुम अभी इस बारे में कुछ नहीं जानते। सिर्फ इस जजीरे पर नहीं बल्कि दुनिया में और भी बहुत सारी जगहों पर यह खेल होता है। हम किसी को मजबूर नहीं करते, लोग अपनी खुशी से इसमें हिस्सा लेते हैं। अब इन दोनों को देख लो। अमेरिका में ये तीसरे दर्जे के नुमाइशी रेसलर हैं। इन्हें कुश्ती लड़ने के एवज सिर्फ चंद हजार डॉलर्स मिलते हैं। यहां से जिंदा जाने वाले फातेह को $1,00,000 मिलेंगे। $1,00,000। मैंने तंज किया। क्या किसी की जान का मुआवजा हो सकता है? हो सकता है, उसने सुकून से कहा। भूखा आदमी एक रोटी के एवज अपनी जान खतरे में डालने को तैयार हो जाता है। हर आदमी का मुआवजा है जिसके बदले वो अपनी जान को दूसरे के हाथ में देने पर तैयार हो जाता है। इनका मुआवजा 1,00,000 है। मैंने रिंग में मौजूद लड़ाकों की तरफ इशारा किया। हाँ, इनके औकात यही है, वरना ये कभी इतनी रकम के बदले अपनी जान दाव पर लगाने के लिए तैयार न होती। तुम्हारी जान की क्या कीमत है? मैंने चुपते हुए लहजा में कहा। मेरी जो कीमत है वो मैं वसूल कर रहा हूं। तुम्हारे ख्याल में क्या मैं अपनी जान दाव पर नहीं लगा रहा? उसने बियर का कार्टन मुंह से लगाया और इसे एक ही सांस में खाली कर दिया। वो वाकई बिला नोश था। अब खामोश रहो, मुकाबला शुरू होने वाला है। इसमें कोई छूट तो होगी। फर्ज करो दोनों ही बेदम हो जाएं। मैंने बाहर की तरफ देखा तो मुकाबला दोबारा होगा, और अगर कोई मुकाबले से दस्तबरदार हो जाए तो इस सूरत में वो अपने हरीफ के रहमो करम पर होगा। वो चाहे तो उसे मार डाले, लेकिन इसके लिए इसे देखने वालों की पसंद का भी ख्याल रखना होगा। अगर तमाशाई इसरार करें तो फातेह पर लाजिम हो जाता है कि वो इसे मार डाले। इस वक्त मेरे अंदर एक लावा सा उबल रहा था। ये लोग कितनी बेहिसी और सफाकी से इंसानों को इस्तेमाल कर रहे थे, महज दौलत के लिए। लेकिन नहीं, दौलत के लिए ही तो सब कुछ होता है। दुनिया में जितने झगड़े, फसाद और खूनरेजियां हैं, सब दौलत की वजह से ही हैं। लेकिन इन लोगों ने तो हद कर दी थी। मैंने सांस की एक मशक की ताकि अपने अंदर जमा होने वाले बुखारात को बाहर निकाल सकूं। इसी लम्हे शोर उठा। दोनों एक दूसरे से गुथे हुए थे। इनमें एक स्याह फाम था और दूसरे की रगों में शायद रेड इंडियन खून था। इसके स्याह बालों और आंखों से ऐसा ही जाहिर था। इसका अंदाज भी वहशियाना था, बिल्कुल किसी लड़ाका रेड इंडियन का सा। उसने सीने से हरीफ को जकड़ रखा था और सर से टकरे मार रहा था। लम्हों में स्याह फाम का चेहरा लहू लहान हो गया। खून आलूदा होकर उसका चेहरा और भयानक नजर आने लगा था। अचानक उसने रेड इंडियन की नाक अपने दांतों से पकड़ ली और उसने इतनी कसकर नाक पकड़ी कि उसकी नोक कट कर स्याह फाम के मुंह में आ गई। रेड इंडियन बैल की तरह टकराया और स्याह फाम को छोड़कर अपनी नाक पकड़ ली। अब हिसाब बराबर हो चुका था। जख्मी होने के बाद दोनों ही मोहतात हो चुके थे। वो अपनी तवानाइयां बचा रहे थे और तमाशाई चीख चीख कर उन्हें लड़ने के लिए उकसा रहे थे। जब वो खासी देर तक एक दूसरे के पास नहीं आए तो रेफरी ने उन्हें वार्निंग थी। इस वार्निंग का मतलब था कि इन्हें रिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा और इन्हें फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। बादल नखास्ता वो एक दूसरे की तरफ बढ़े। खासी देर तक हाथापाई होती रही, जिसमें दोनों ही मजीद जख्मी हो गए। अमेरिका के रेसलिंग के नुमाइशी मुकाबलों में हिस्सा लेना और बात थी, और यहाँ जिंदगी और मौत का खेल खेलना अलग चीज थी। इसने इनके हौसले पस्त कर दिए थे। हार का मतलब था मौत, और मौत कबूल करते हुए सभी झिझकते हैं।
$1,00,000 की कशिश न होती तो शायद उस मुकाबले की हिम्मत ही न कर पाते। दिखने में स्याफाम ज्यादा मजबूत नजर आता था और रेड इंडियन जख्मी भी ज्यादा था, लेकिन उसने चालाकी से काम लिया। एक मौका पर जब उसने स्याफाम को दीवार के पास घेरा था, उसने उसका सर दीवार से टकराया। वो चंद लम्हे के लिए चकराया और रेड इंडियन उस पर हावी हो गया। उसने दूसरी बार ज्यादा कुव्वत से स्याफाम का सर दीवार से टकराया और वो बेसुध हो गया। रेड इंडियन ने खड़े होकर फातिहाना अंदाज में हल्की से आवाज निकाली। इस लम्हे वो स्याफाम को फरामोश कर बैठा था और फतेह के नशे में हाथ पैरों से मजनूनाना किस्म के इशारे कर रहा था। फिर उसने तमाशाइयों की तरफ देखा तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसे कत्ल करो, मार डालो, किल हिम। तमाशाई दीवाने हो रहे थे। इनके सामने एक इंसान पड़ा था और वो दूसरे इंसान से इसके कत्ल का मुतालबा कर रहे थे। वो चंद लम्हे चारों तरफ घूम घूम कर देखता रहा, फिर अकड़ते हुए स्याफाम तक पहुंचा। चंद लम्हे पुरहुरूर नजरों से उसकी तरफ देखता रहा, फिर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, स्याफाम ने तड़प कर उसकी टांगों के दरमियान हाथ डाल दिया। रेड इंडियन के हल्क से धाड़ निकली थी। इसकी जान स्याफाम के कब्जे में चली गई थी। इसकी गिरफ्त बेहद सख्त थी। रेड इंडियन माहिबे आप की तरह तड़प रहा था। उसने 2-3 बार हाथ चलाए, लेकिन स्याफाम उसके हाथों की रसाई से दूर फर्श पर पड़ा था। उसने अपनी सारी कुव्वत हाथों में मुंतकिल कर दी थी। उसने बाजुओं को इस तरह अकड़ा लिया था कि रेड इंडियन बैठ भी नहीं सकता था। वो ऐसे दाव में फंस गया था कि निकलने की सूरत नजर नहीं आ रही थी। 3 बार उसने स्याफाम को ठोकरें मारने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश इतनी फुसफुसी थी कि उसे ज़र्ब का एहसास भी नहीं हुआ होगा। रेड इंडियन का चेहरा सफेद पड़ रहा था। अचानक स्याफाम ने हाथों को पूरी कुव्वत से अपनी तरफ खींचा। एक जख्मी दरिंदे किसी चीख के साथ रेड इंडियन दीवार से टकराया और नीचे गिर पड़ा। अब इसमें इतनी सकत नहीं थी कि उठ सके। अगले हिला में स्याफाम उसकी पुश्त पर था। उसने दोनों हाथ मिलाकर रेड इंडियन की गर्दन के गिर्द लगाए और गर्दन को पीछे की तरफ खींचने लगा। अगर रेड इंडियन में दम होता तो वो इसे इतनी आसानी से कामयाब न होने देता। चिट की आवाज के साथ उसकी गर्दन टूट गई और जिस्म निज़ा की हालत से तड़पने लगा। स्याफाम पीछे हटकर दीवार के साथ टिक गया था। इसकी अपनी हालत बुरी थी, मगर वो फाते था। जैसे ही उसकी फतेह का ऐलान हुआ, लोगों ने चीख चीख कर एक कत्ल पर उसे मुबारकबाद दी। मैंने महसूस किया कि वो ज्यादा खुश नहीं था। वो खाली नजरों से तमाशाइयों को देखता रहा जो रिंग में नोट और मुख्तलिफ अशिया फेंक रहे थे। एक शेख को मैंने अपनी कीमती अंगूठी उतार कर फेंकते हुए देखा, जिसमें खासा बड़ा हीरा जड़ा हुआ था। स्याफाम उठकर इन चीजों और नोटों को जमा करने लगा। उसने नाकाबिले यकीन अंदाज में बाजी पलट कर लोगों को दीवाना कर दिया था। इन्होंने सही मानों में लुत्फ उठाया था। रिंग के स्लाइडिंग डोर खुले, इनमें से कुछ अफराद बरामद हुए। रेफरी ने आकर स्याफाम का बाजू हवा में बुलंद किया, लेकिन उसने एक झटके से अपना बाजू छुड़ा लिया और लड़खड़ाता हुआ जिस सुराग से आया था उसी से वापस चला गया। अब रिंग की सफाई की जा रही थी। बाज लोग स्ट्रेचर पर रेड इंडियन की लाश ले जा रहे थे। इसकी टूटी हुई गर्दन के बायस सर बेडोल तरीके से हरकत कर रहा था। दूसरा अमला रिंग की सफाई सुथराई में लग गया। इन्होंने फर्श से खून साफ किया। एक शख्स को मैंने जमीन से रेड इंडियन की कटी नाक का हिस्सा उठाते देखा, जो स्याफाम ने दांतों से काट लिया था। बमुश्किल 1.25 घंटे में यह सारा तमाशा खत्म हो गया। क्या यह सिलसिला जारी रहेगा अभी? मैंने खासी देर बाद जान ग्रे की तरफ देखा, जिसकी आंखें चमक रही थी। हाँ, आज 2 मुकाबले और होंगे। उसने सर हिलाया और अपनी साथी लड़की से बोला, हनी कुछ पीने के लिए लाओ। हनी लहराती बलखाती उठी और जानबूझकर मुझसे अपने नरमो गुदाज वजूद को टकराती कैबिन से बाहर चली गई। रिंग में नए मुकाबले की तैयारियां हो रही थी। अचानक मेरी निगाह छत पर लगे कैमरों पर गई। दूर से कंट्रोल किए जाने वाले ये कैमरा 6 मुख्तलिफ जावियों से रिंग को दिखा रहे थे। मुझे यकीन था कि रिंग की दीवारों और कुछ मकामात पर भी कैमरे होंगे। तुम लोग इन मुकाबलों की मूवी भी बेचती हो? हाँ, जॉन ग्रे ने इस बात में सर हिलाया। इसके अलावा हम इसे लाइव टेलीकास्ट करते हैं। दुनिया के बेशुमार हिस्सों में हमारे मखसूस नाइट क्लबों में इन मुकाबलों को दिखाया जाता है। लोग इन पर शर्तें लगाते हैं। बुकिंग करने वाले तुम होते हो। मैंने तंज किया। तयशुदा फाइट्स कराते हो? नहीं, कोई शख्स अपनी जिंदगी के एवज मुकाबला फिक्स नहीं करता, वो बोला। अलबत्ता हमारे पास कुछ और तरीके हैं जिनकी मदद से हम शर्तों में नुकसान से महफूज रहते हैं। मेरे खुदा, क्या दुनिया वालों को यह सब नजर नहीं आता? मैंने कहा, तुम लोग इतनी दलेरी से इतने इंसानियत सोच काम कर रही हो। इंसानियत के नाम निहाद अलम बरदार क्या कर रहे हैं? इंसानियत के अलम बरदार, जानगरे ने कहका मारा। ये किस इंडिया का नाम है और ये कहां पाई जाती है? इसी दुनिया में, मैंने तलखी से कहा। इन्हें सिर्फ वहां इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां नजर आती हैं जहां वो देखना चाहते हैं। मैं सियासत में नहीं पढ़ता, उसने बेकरारी से कहा। कि मेरा शोबा नहीं है, हम तो बस लोगों को तफरीह फराहम करते हैं। इस किस्म की तफरीह? मैंने रिंग की तरफ इशारा किया।
इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। उसने हाथ हिलाया। चल तुम देखोगे। इस जगह पर एक बैनुल अक़वामी किस्म का कैसीनो है जहां सिर्फ करोड़पति और अरबपति अफराद ही खेलते हैं। हमने इस जजीरों को जन्नत बना दिया है। यहाँ दुनिया की हर कौम और हर मुल्क की हसीन तरीन लड़कियां मिलती हैं। दलाली के इस कारोबार को तुम तफरीह का नाम देते हो। ये तो सोच का फर्क है। अगर तुम मशरिक वाले ऐसी सोच नहीं रखोगे तो इसी तरह पसमानदा रहोगे। देखो, जब तक इंसान को अपनी कमाई गई दौलत खर्च करने की आज़ादी नहीं मिलेगी, वो दौलत नहीं कमाएगा। दुनिया की तरक्की के लिए जरूरी है कि लोगों को आज़ादी मिले। जंगल की सी आज़ादी, मैंने तंज किया। जहां ताकतवर सब करने के लिए आज़ाद हैं और कमज़ोरों को सिर्फ मरने की आज़ादी हासिल हो। दुनिया का फलसफा यही है हमेशा से। फिर इतने मज़ाहिब और इतने समाजी मसले क्यों सामने आए? आज भी दुनिया की अक्सरियत अच्छाई पर यकीन क्यों रखती है? वो जहरीले अंदाज में हंसा। और अमलन दुनिया में क्या हो रहा है? क्या यहाँ जंगल का कानून नहीं है? ऐसा सिर्फ चंद लोगों की वजह से है जिन्होंने ताकत के बल पर दुनिया पर कब्जा कर लिया है। इससे क्या फर्क पड़ता है? होता तो वही है जो ये चंद लोग चाहते हैं। मैंने दिल में तस्लीम किया कि तमाम असूल और कवायद एक तरफ, होता वही था जो बड़ी ताकतें चाहती थी। रिंग में दूसरा मुकाबला शुरू हो चुका था। इस बार एक थाई किक बॉक्सर एक जापानी जूडो मास्टर से मुकाबला कर रहा था। दोनों अलग अंदाज के लड़ाके थे, लेकिन इस रिंग में अहमियत लड़ने के अंदाज की नहीं बल्कि फनाओ बका के रह जाती थी। हार से बचने और फतेह के लिए हर हरबा जायज था। जल्दी दोनों लड़ाके अपने असल अंदाज को भूलकर एक वहशियाना जिद्दोजहद में उलझ गए थे। मेरे ज़हन में उन फिल्मों के मनाजर रोशन हो गए जो पुराने रोमन तौर पर बनाई गई थी। तकरीबन हर फिल्म में इन खूनी अखाड़ों को जरूर दिखाया गया था जहां इंसान और जानवरों के दरमियान फनाओ बका की जंग हुआ करती थी। इंसान से बरसे बेकार हुआ करते थे। अखाड़ों की सरजमीन इंसानी खून से लालाजार हो जाया करती थी और वहशी रोमन इससे लुत्फ अंदोज हुआ करते थे। इस पर भी उनका दावा था कि वो मुहज्जब कौम थे। बिल्कुल उसी तरह दौरे जदीद की मुहज्जब कौमें अपनी तहजीब की झलक नित नए अंदाज में दिखाया करती हैं। ये भी इनके मुहज्जब होने का सबूत था। मिलाकर थाई किक बॉक्सर जोडो मास्टर के एक दाव पर आ गया और अपना टखना तुड़वा बैठा। इसके बाद का मरहला जोडो मास्टर के लिए आसान था। एक और आदमी जिंदगी हार गया था। फतेह इंसान के नहीं मौत के हिस्से में आई थी। लोग दीवाने हुए जा रहे थे। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हर इंसान के अंदर एक दरिंदा छुपा होता है जो इस खून रेजी का तकाजा करता है, मगर अक्सर लोग इस तकाजे को नजरअंदाज कर देते हैं या अज खुद पूरा नहीं कर सकते। लिहाजा वो खून बहता देखकर तस्कीन हासिल करते हैं। यहाँ ज्यादा ऐसे ही लोग थे जिनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी से लड़कर और उसे शिकस्त देकर अपनी हैवानी फितरत की तस्कीन कर सके। लिहाजा वो रकम खर्च करके ये तस्कीन हासिल कर रहे थे। ये बुज़दिल लोग थे जो अपनी जिंदगी दाव पर नहीं लगा सकते थे। लिहाजा ये दूसरों को लड़ा रहे थे। अपनी दौलत के बल बोते पर दूसरों की जिंदगियों को दाव पर लगाकर वहशियाना तस्कीन कर रहे थे। तमाशाइयों में हर नस्ल और हर कौम के अफराद नजर आ रहे थे। इनमें उमामों और अबाओं वाले अरब भी थे, सूट पोश मगरबी बाशिंदे भी, स्याबी और जर्द नस्ल के लोग, बरसगीर के भी कुछ लोग नजर आ रहे थे। लेकिन यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि इसका ताल्लुक किस मुल्क से हो सकता था। लेकिन इन सब में एक बात मुश्तरक थी, वो बेइंतहा दौलतमंद थे और इसके बल पर अपने अंदर के हैवान को मुतमईन करने आए थे। हैरानकुन बात यह थी कि हाल में जितने मर्द थे तकरीबन इतनी ही औरतें भी थीं और वो ज़ौक़ शौक से ये खून रेज मुकाबले देख रही थी। जब मुकाबला करने वाले एक दूसरे पर वहशियाना हमले करते थे तो इनके मुंह से मुसर्रत भरी चीखें बरामद होती थीं। अगली नशिस्तों पर अक्सर औरतें थीं। खुद हमारे साथ जो क़यामतें बैठी थीं वो मुकाबला शुरू होते ही हमें भूल जाती थी। मुकाबले के दौरान उनका जोशो खरोश काबिल दीद होता था। काबिल इत्मीनान बात यह थी कि इस दौरान जीना कम से कम मुझे भूल जाती थी और मैं इसकी दस्त दराजियों से महफूज हो जाता था। अब आखिरी मुकाबला था और मेरा अंदाजा था कि यह मुकाबला अहम तरीन होगा। इस किस्म के मुकाबले सबसे आखिर में रखे जाते थे। सबसे पहले एक लंपा तिरंगा सांवले रंग का नौजवान रिंग में आया।